Good morning, class 7 English medium students. So now today we again start our lesson 17, the Governor and State Council of Ministers. Okay, in our last video we will discuss about the Governor and his powers and his main functions, the qualification which required to become a governor. So ये सारी चीज़ें हमने हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस की हैं related to governor, and now today we start the state cabinet or the state council. So first of all you have to know that what is the state cabinet or the state council. You all studied about the elections of the members of Vidhan Sabha. Okay, आप सभी ने पढ़ा हुआ है कि जो इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स विधान सभा या लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स का जो इलेक्शन होता है वो किस बेस पर होता है. You have also studied that for the assembly election the whole state is divided into constituencies. Okay, जो इलेक्शंस होते हैं उसमें सारे स्टेट को कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हिसाब से बांट दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है. ओके, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन a council of minister is constituted to add and assist the governor. That means the state cabinet or the state council of ministers जो होता है वो लोगों का या वो मिनिस्टर्स का समूह होता है जो कि असिस्ट करते हैं. ओके, एंड ऑर्डर्स फॉलो करते हैं गवर्नर्स के. ओके, गवर्नर्स के असिस्टेंट के रूप में जो लोग वर्क करते हैं, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को जो लोग फॉलो करते हैं वो जो होते हैं वो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं या स्टेट कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं. आया समझ में? So according to the constitution a council of ministers is constituted to add and assist the governor. Okay, add and assist the governor, that means governor को as a assessment of governors वर्क करते हैं, गवर्नर्स के दिए गए कार्यों को फॉलो करते हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहलाते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूट होके संगठित होके ये कार्य करते हैं. दिस लीडर ऑफ दिस काउंसिल विल बी द चीफ मिनिस्टर and the state cabinet's head is known as chief minister. Okay, state cabinet ministers के जो head हैं वो कहलाते हैं chief minister. chief minister just assist to the governor, जैसे for example as a prime minister assists to the president, same as chief minister assists to the governor. Okay, now it is given to our constitution that the leader of the majority party in the state assembly is appointed to the chief minister. State assembly में जो majority of the party के थ्रू इलेक्ट होता है पर्सन वो चीफ मिनिस्टर होता है उस स्टेट का, जिसको कि सबसे ज़्यादा वोटिंग से स्टेट की जो जनता है वो जिताती है. Sometimes two or more parties combine and elect their leaders. कभी-कभी एक दो या दो से ज़्यादा पार्टीज कंबाइन होकर भी अपने मंत्री को, अपने मुख्यमंत्री को चुनती हैं. बट दे हैव टू प्रूव देयर मेजॉरिटी इन द हाउस, परंतु उन्हें अपनी मेजॉरिटी, अपनी बहुमत जो है वो विधानसभा में सिद्ध करनी होता है. ठीक है. द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर. चीफ मिनिस्टर जो है वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है. ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर ही अपॉइंट्स द अदर मिनिस्टर्स. सेम एज जैसे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, एंड विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अपॉइंट द अदर मिनिस्टर्स एज अ यूनियन in a union government. Okay, so simply same as at the state government, governor appoints chief minister and with the consultation of chief minister he appoint the other ministers. Okay, the governor allocates the portfolios to the ministers on the advice of the chief minister. chief minister की advice के थ्रू वो portfolios जो होते हैं ministers के उन्हें allocate करता है. Now our next point, ranks of council of ministers. There are 4 ranks of council of ministers. 4 rank होते हैं council of ministers में: cabinet minister, minister of state, deputy minister and parliamentary.
secretary. Okay, cabinet minister, minister of state, deputy minister and parliamentary secretary. Got it? ये 4 ranks हैं state cabinet ministers के. To be a member of the council of ministers, a person should be a member of the state ministers. Okay, state assembly का minister होना जरूरी है, member होना जरूरी है cabinet minister को होने के लिए. किसी भी cabinet minister का होना state assembly का member होने से ही हो सकता है possible. Okay, यदि वो state assembly का राज्यसभा का सदस्य है तभी वो cabinet of minister appoint किया जा सकता है. If he is not a member at the time of appointment, then he should become a member of either house of the state assembly within a period of 6 months. यदि वो उस टाइम पे जिस टाइम अपॉइंट हो रहा है तब नहीं है मेंबर, तो उसे दूसरे हाउस का मेंबर विदिन 6 मंथ्स होना जरूरी है अपॉइंट होने के बाद भी. ओके, सो इस तरह से जो चीफ मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनके अपॉइंटमेंट्स की प्रोसीजर को किया जाता है. इनमें 4 रैंक्स होते हैं: कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट सेक्रेटरी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सो सेम एज जैसे पावर्स और फंक्शंस होते हैं आपके गवर्नर के, कि वो गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, विद द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर ही अपॉइंटेड टू द अदर मिनिस्टर्स, ही he just do the appointments in the other sectors also related to the state. Okay, same as cabinet ministers के जो powers और functions हैं वो हैं formulate the policies and execute them. formulate करता है policies को और उन्हें कार्य में लाते हैं. Okay, different types of policies regarding to the state development and all, cabinet ministers form that policies and formulate them. Okay, next है to advise the governor. As I told you, governor advice लेता है चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के साथ साथ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स के भी ये फंक्शंस हैं, ये पावर्स हैं कि वो गवर्नर को एडवाइस दे सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर मैटर के रिगार्डिंग. Legislative functions, the governor bill are prepared by the members of the state council of ministers and then it is introduced in either of the house. जो गवर्नमेंट के बिल्स हैं, ओके, स्टेट गवर्नमेंट के जो बिल्स हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं और उसे दीगर काउंसिल अदर काउंसिल के हाउस के सामने, अदर हाउस के सामने प्रेजेंट किया जाता है. सो ये वर्क भी है उनका फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव फंक्शंस है जिसमें बिल प्रिपेयर करके वो अदर हाउस के सामने प्रेजेंट करते हैं. इट इज द मेंबर ऑफ द काउंसिल हु गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द बिल एंड आंसर क्वेश्चंस. इफ एनी बिल इज नॉट पास्ड इन द विधानसभा देन द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टू प्रेजेंट. बिल्स को प्रेजेंट करने का पावर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का है और यदि कोई भी बिल अप्रूव नहीं होता है, उसको रिजेक्ट किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ये राइट है कि वो होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज द राइट टू रिजाइन करने का पूरा अधिकार होता है. नाउ फाइनेंशियल फंक्शंस related to the foreign affairs, foreign policies and all, the financial functions are also done by the state council of ministers. state council of ministers के द्वारा क्या किया जाता है, जो फाइनेंशियली जो वित्तीय कार्य होते हैं related to the state, वो सारे वित्तीय कार्य भी किए जाते हैं. उनको ये पावर है, ये अथॉरिटी है कि वो रिगार्डिंग टू द फंक्शंस ऑफ फाइनेंस रिलेटेड फंक्शंस को अप्रूव करें, फाइनेंस रिलेटेड फंक्शंस के फॉर्मेशन को तैयार करें और उसे गवर्नर के सामने प्रेजेंट करते हुए उनकी परमिशन, चीफ मिनिस्टर की परमिशन के साथ उन फंक्शंस को फॉर्म में लाएं. सो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट ऑफ स्टेट. ओके, सो स्टूडेंट्स, इन दिस लेसन वी लर्न अबाउट द हेड ऑफ द स्टेट, गवर्नर. गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट विच इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, which is appointed by the prime minister of our country. Okay, and after the government appointment, governor has the right to appoint the prime minister and governor has the right to appoint the chief minister and the state council of ministers with the advice of chief minister. Okay, and उसकी जो qualification है, he must be citizen of India. Okay, at the age 35 years
union government. He should not be mentally retired or mentally disabled or bankrupt. Okay, and he has to be the member of the any house. जो भी member of the any house को ही जो है qualification में, गवर्नर qualification में आता है कि member of the house, that means house of the people or the house of the state. जो दोनों हैं council of the state या house of the people, इनको जो है इनका member होना उसके लिए जरूरी है. Now come to the cabinet of state. So cabinet of state, that means राज्य सभा. Cabinet of state हेड जो होते हैं वो चीफ मिनिस्टर होते हैं. कैबिनेट ऑफ स्टेट के चीफ मिनिस्टर की एडवाइस से ही गवर्नर जो है दीगर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं. अदर मिनिस्टर्स को, काउंसिल मिनिस्टर्स को अपॉइंटमेंट मिलती है. जो अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनका भी काम यही है. कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स का वर्क यही है कि वो लेजिस्लेटिव वर्क करते हैं. बिल्स को गवर्नर के थ्रू जो बिल्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के बिल्स को प्रेजेंट करते हैं. ओके, गवर्नर के सामने और साथ ही साथ हाउसेस के सामने प्रेजेंट करते हैं. और यदि कोई बिल डिसअप्रूव होता है तो काउंसिल ऑफ स्टेट को ये राइट है कि वो एक साथ अपने सभी मंत्रियों के साथ रिजाइन कर सकते हैं. ओके, अपॉइंटमेंट्स का राइट होता है उनको. दीगर जो अदर मंत्री हैं उनको अपॉइंट्स कर सकते हैं विद द एडवाइस, टेकिंग एडवाइजर चीफ मिनिस्टर. ओके, नाउ फाइनेंशियल जो अफेयर्स हैं, फाइनेंशियल जो फंक्शंस हैं उनको अप्रूव करते हैं, उनको फॉर्म में लाते हैं. सो इस तरह से जो कैबिनेट ऑफ स्टेट है, स्टेट कैबिनेट और काउंसिल कैबिनेट ऑफ स्टेट जो है उसका ये वर्क होता है. सो हियर्स वी डिस्कस अबाउट द गवर्नर एंड द स्टेट कैबिनेट ऑफ आवर कंट्री. ओके, नाउ दिस चैप्टर इज नाउ completed. The explanation of the chapter is completed, and in our next video we will discuss the exercise of our this lesson.